Hello and welcome to our new channel, Sani Commerce Academy. My mission is to support commerce students by helping them learn accountancy from basics to advanced concepts. We will cover the syllabus for both 11th and 12th grades throughout the year by regularly uploading educational videos and reels. तो शुरू करते हैं आज से और अभी से। पहले तो बेटा सबसे पहली बात जो आती है कि इट इज़ अ वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर यू इफ़ यू हैड चूजन द कॉमर्स स्ट्रीम। रीज़न, टिल टेंथ बेटा यू आर फैमिलियर टू अ सब्जेक्ट साइंस। साइंस यू माइट हैव स्टडीड, यू माइट हैव मीन्स कि definitely you had studied about physics, chemistry, bio, and mathematics. Social science you had studied about history, civics, geography, and few concepts of the economics. So you are very much familiar to the terms which are used in a study of all those subjects. But commerce is a very new subject for you all. So today I had decided to start it with the terminology. Now exact what do you mean by the terminology or terms? In Hindi we call it as a Shabdavali. The terminology means the specific words which are used in a study of that particular subject. So these are the specialized words. So later on we will discuss about each and every terms which you are going to study in accountancy. But today I will introduce with the accounting process. अच्छा, what is the importance of accounting? That is very important thing है ना. I am missing it. बेटा, being a businessman, actually ना accountancy is the language of business. So being a businessman, every individual would like to know what is the result of his business, what is the result of his efforts, जो उनने साल भर मेहनत किया, जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया टू स्टार्ट अ बिजनेस. लुक, विदाउट इन्वेस्टमेंट नो बिजनेस कैन बी स्टार्टेड. If you want to start a business on a small scale, medium scale, or a large scale, only one thing is required, that is an investment. That later on I will clear you what do you mean by the investment. Actually, it is known as a capital. In Hindi, we call it as a punji. So later on, when we will go for our further videos or further reels, then I will come to the point. Each and every terms which you are going to study in this accountancy. But today we will go for the accounting process. Now look, this topic is for +1 commerce students. Why +1? Because again, as I told you कि बेटा नया सब्जेक्ट है, आपको बिल्कुल एकदम फ्रॉम द बिगनिंग यू हैव टू स्टार्ट. और ये मुझे मालूम है बिकॉज माई एक्सपीरियंस इज़ डैट कि बच्चों को अनटिल एंड अनलेस द बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होते तो जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत हार्ड लगने लगता है. और अगर बेसिक से अगर आप उसको क्लियर कर रहे हो, ईच एंड एवरी कंसेप्ट अगर आप लेके चल रहे हो फ्रॉम द बिगनिंग, तो वो सब्जेक्ट आपको इजी गोइंग हो जाता है और उसके रिजल्ट फिर डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मिलते हैं. सो अकाउंटिंग प्रोसेस इन +1 सिलेबस, एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द थ्योरेटिकल पार्ट, वो बाद में करेंगे. मेरी जो आइडियोलॉजी है रिगार्डिंग टीचिंग वो ये होती है कि अपन पहले न्यूमेरिकल पार्ट से अगर स्टार्ट करते हैं. न्यूमेरिकल पार्ट में बहुत सारे कंसेप्ट्स ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट वो ऑलरेडी उसमें अपने कवर हो जाते हैं. और बहुत सारे चैप्टर्स जो आपके +1 के हैं, चाहे आप CBSE बोर्ड से हैं या आप कोई भी अदर स्टेट बोर्ड से हैं, वो आपके सीक्वेंस वाइज वो कवर होते जाएंगे. सो अंडर अवर अकाउंटिंग प्रोसेस फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम journal entry. Journal entry is known as a recording. Second step after journal entry is ledger posting. It is known as a classify. Now look, these points which I am telling you, actually it will help you in defining the term
अकाउंटेंसी, है ना। वो जब डेफिनेशन अपन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें कितनी बेनिफिशियल है आपको, जो आपको डेफिनेशंस लर्न करने के लिए या कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो भी इसी से कवर हो जाती है। थर्ड इज़ योर ट्रायल बैलेंस। एक्चुअली यू कैन कॉल इट एज अ समराइजिंग, अगेन बाद में करेंगे उसको अपन डिस्कस। एंड लास्ट स्टेप इज योर फाइनल account, and the abbreviation form of account you can use A/C, and it helps you in a interpretation of result. Now important thing कि from when you have to start your accounting process. So actually it is you can say one is your calendar year, another is your महाजनी ईयर, एंड वन मोर ईयर जो यूरोपियन कंट्रीज जनरली उसको लेके चलती है। कैलेंडर ईयर मीन्स कि योर अकाउंटिंग प्रोसेस इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1st जनवरी, द एंटायर प्रोसेस विल गो थ्रू आउट द ईयर एंड इट विल एंड टू 31st ऑफ डिसम्बर। महाजनी ईयर जो इंडिया के अंदर अपन लेके चलते हैं और बहुत सारी कंट्रीज भी लेके चलती हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल and ends to 31st of March. And few European countries that I told you, again they used to start it from 1st July and they used to end it on 30th of June. What is the common between all this? That is, it is of total 12 months. Now बीइंग अ बिजनेसमैन, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में किए थे कि आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस का जो मेन ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग होता है। बिना प्रॉफिट अर्निंग के कोई भी बिजनेस नहीं किया जाता। बाद में अपन उसको भी कवर करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट को ऑक्यूपेशन भी बोला जाता है। वो सब चीज़ें अपन बेटा कंसिस्टेंसी के साथ में अपन रेगुलर, मैं आपको वीडियोस डाउनलोड करूँगा, रील्स डाउनलोड करूँगा, आप कीप इन टच विथ मी और आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। और अभी भी आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड बिलीव मी, कॉमर्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड कैरियर ओरिएंटेड टू, है ना, आज की डेट में अगर अपन बात करें। सो इन फाइनल अकाउंट अगेन फर्स्ट थिंग दैट वी आर प्रिपेयरिंग इज आवर trading account. The object of preparing trading account is to ascertain whether there is a gross profit or a gross loss. Now, what do you mean by the gross profit or a gross loss, or what formula if we are talking about applying a certain formula? So revenue means net sales less cost of goods sold. बेटा जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेवेन्यू जब अपन टर्म्स करेंगे ना तो उसमें उस चीज़ को अपन कवर करेंगे। ओके, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट सेकेंड वन इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. The object of preparing profit and loss account is to ascertain whether there is a net profit or a net loss. So, for ascertaining gross profit, again as I had already told you कि from total revenue you have to deduct the cost of goods sold, means कि the direct expenditure जो रहते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं. फिर डिटेल में हमने आपको जैसे बताया हुआ है बेटा, स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी कंसेप्ट अपन उसको क्लियर करते हुए चलेंगे. अभी आज फर्स्ट डे है, सो फॉर इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है. एंड लास्टली B and then C is your balance sheet. What? Balance sheet. बैलेंस शीट मालूम ही होगा, बहुत बार अपन सुनते हैं बैलेंस शीट. एक्चुअली इट इज़ अ total of assets as well as a liability. Now what do you mean by asset, what do you mean by liabilities? Again the classification of asset: current asset, fixed asset, non-current asset, intangible asset, tangible asset, liabilities, internal liabilities, external liability. हर एक चीज को अपन क्लियर करेंगे विथ
फुल फोकस के साथ में कि अपने को कोई भी इफ और बट वाला डाउट उसमें रहना नहीं चाहिए। नाउ the main thing is by preparing trading and profit and loss account, the businessman comes to know about a financial result। जैसे आप लोगों का रिजल्ट होता है ना, साल भर का पास हुए कि फेल हुए, है ना, ऐसे ही प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये बिजनेसमैन का रिजल्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये हमने आपको पहले ही बताए थे। सो टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज मीन्स कि योर फाइनेंशियल पोजीशन, इग्नोर माय हैंडराइटिंग, है ना, क्योंकि प्रॉम्प्टली अगर मुझे आपको बताना है और अगर मैं अपनी हैंडराइटिंग पे कंसंट्रेट करूंगा तो मे बी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और शायद अपन वो चीज़ों को ना ले कर पाएँ जो अपन अपना जो मेन मोटो है उसको अपन कर ना पाएँ। ठीक है, now again we will if you go through the process, it is the art of recording. Now what do you mean by art of recording? Look, what is the main importance of accounting? When I started this profession ना, the very first book जो मेरे हाथ में आई थी और very first sentence जो मैंने पढ़ा था वो मुझे आज भी याद है कि accounting का जो main importance था वो एक हिंदी में पहले उसको लिखा गया था कि पहले लिखें फिर दें, भूल पड़े तो कागज से लें। कहने का मतलब इसको इंग्लिश में, फर्स्ट राइट देन पे, इफ रिफर नीडेड द पेज। एक्चुअली अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस इज टू रिप्लेस द ह्यूमन मेमोरी। As you all know, the human memory is having a limited storage capacity, and in a single day the numerous transactions are taking place. Whatever size of business is there, whatever kind of nature of business is there, if you are involved in a business, so the numerous of the transaction are taking place in one single day, and it is quite hard for a common person to remember all those financial nature transaction. Now look, again one word is coming again and again, that is a transaction, है ना, ट्रांजैक्शन। तो कल वाली वीडियो में बेटा अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। आई प्रॉमिस, कल वाली इस वीडियो को जब अपन स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, अपन जो टर्मिनोलॉजी जो टर्म्स की बात कर रहे थे उसमें सबसे पहली चीज अपन जो लेके आएंगे वो क्या लेके आएंगे, अपन बिजनेस ट्रांजैक्शन। नाउ classifying on a basis of a nature, you have to classify the you can say accounting head कि परचेस कितना है, सेल्स कितना है, सैलरी कितनी जा रही है, डिस्काउंट कितना अलाउड हो रहा है, डिस्काउंट कितना रिसीव हो रहा है, कितने के डेटर्स है, कितने के अपने क्रेडिटर्स है, कौन एक इंडिविजुअल डेटर नहीं होता, देयर आर सो मैनी डेटर। अगेन कल बेटा फिर अपन एक चीज़ और करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डेटर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर्स, ये भी कल अपन करेंगे, है ना। बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया, परचेज और सेल की बात करें तो अपन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स भी कल करेंगे कि गुड्स क्या होता है। ये सब चीज़ें बेटा अपन कवर करेंगे जब अपन आएंगे काय में, टर्म्स में। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग प्रोसेस? ओके, वी हैड रिकॉर्डेड, वी हैड क्लासिफाइड इट ऑन अ बेसिस ऑफ, वी हैड टेकन ऑल द डेबिट बैलेंस एंड ऑल द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द different or the various accounts in a trial balance. Then we had taken all the balances in again a separate account that is known as a final account which consists of the three important things. One is your trading account, profit and loss account, and balance sheet. Actually I am going what is in your syllabus, if you will go for in detail. So look beta, every subject is very vast, है ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी बनती हैं, लेकिन अब मेरा जो मेन मोटो है या आप कह सकते हो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको इजी बना के अकाउंटिंग आपको समझाना है, और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, मे बी फ्रॉम CBSE, मे बी फ्रॉम द स्टेट बोर्ड, अपन को वो करना है। सो ये जब सब चीज़ें आपके पास आ जाती है, फाइनेंशियल रिजल्ट भी आ गया, फाइनेंशियल पोजीशन भी आ गया, तो बेटा अपना जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अपना फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट आएगा कि यार ये अपन को किसी ना किसी को कम्युनिकेट तो करना है, कम्युनिकेटिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेटिंग? सो देयर आर डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
यार बिजनेसमैन कर रहे हो, यू आर द प्रोपराइटर, यू आर द ऑनर, यू आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पर्सन टू नो अबाउट ऑल दिस इंफॉर्मेशन. बट अगेन दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू internal users and external users. ये भी बेटा अपन को कवर करना है, इंटरनल यूजर्स एंड द एक्सटर्नल यूजर्स. ठीक है. सो अपन इसको बेटा बिल्कुल अपन कैरी फॉरवर्ड करते चलेंगे, लेते चलेंगे. कैरी फॉरवर्ड वगैरह देखो ये एक्चुअली क्या है, मेरे जो बेसिक जनरल यूज़ में भी जो वर्ड्स आते हैं ना वो रिलेटेड टू अकाउंटिंग आते हैं. ठीक है. सो फॉर टुडे मेरे ख्याल से बेटा ये सफिशिएंट है, लेकिन मेरी वीडियो कभी भी एंड नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आई एम नॉट गिविंग यू दिस विशेष कि always keep smiling and stay blessed. So that's all for today. मिलते हैं और be in touch, keep in touch. That's all. Goodbye.